हम एफिसियों की ओर मुड़ेंगे। second chapter, दूसरा अध्याय 12th verse. 12वां वचन, एफिसियों 2:12। It mentions 5 things that happened to man when he separated from God. और यहाँ पर 5 चीजों को बताया गया है जो मनुष्य के साथ हुआ जब वो परमेश्वर से दूर हुआ। Those were not people of God. What happened to them? और वो परमेश्वर के जन नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ? They were living without. और वो लोग इसके बिना जी रहे थे। 5 things are mentioned. 5 बातें बताई गई हैं। What are the 5 things? वो 5 बातें क्या हैं? First, without Christ. और मसीह से अलग। What do you mean by that? Without any belonging. Passport. और कुछ भी जो है उनसे रिश्ता नहीं है इस्राएल से। So means without belonging. और अनजान है। Third, तीसरा, without promises. बिना वायदों के। 4, without hope. आशाहीन। 5, without God. ईश्वर रहित। What do you call a person who has no relationship, no belonging, no promise, no hope, no God? और जिसका कोई रिश्ता नहीं है, जो अनजान है, जिसके पास कोई वायदा नहीं है, जो आशाहीन है और जो ईश्वर रहित है। What do you call that person? उस व्यक्ति को आप क्या बुलाओगे? Okay. Any other word? गुम हो गया है। और कोई शब्द? Orphan. अनाथ। Slave. दास। Other words? Hopeless. Useless. नाकारा, कोई But काम का Do you नहीं। know what Bible calls that person? आपको मालूम है बाइबल क्या उस व्यक्ति को बुलाता है? मरा हुआ। Chapter 2, verse 1. दूसरा अध्याय का पहला वचन। Next person. अगला व्यक्ति पढ़ेगा 2:1। In the past, you were spiritually dead because of your sins and the things you did against God. Okay. Another translation. दूसरा अनुवाद। And you were dead in your trespasses and sins. You were dead in your sins and trespasses. और आप भी अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। Okay. This is important to understand. और ये महत्वपूर्ण है समझना। So, man was with God in the beginning. मनुष्य परमेश्वर के साथ था आदि में। When man separated from God, जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, now how does this man how did he begin to live? और ये मनुष्य फिर कैसे जीने लगा? Ephesians 2 and 3. एफिसियों 2:2 और 3। एफिसियों 2:2 और 3। It says he was living according to. और वो इस रीति के अनुसार जी रहा था, ऐसा बताता है। 5 things. 5 बातें। First, he was living according to. पहला, वो किस रीति में जी रहा था? No, what you call course of the world. और इस संसार की रीत के तरह, रीति पर। Course of the world. संसार की रीति पर। Next part. अगला हिस्सा। Study the word and find out what is it. वचन को पढ़ें और उसको देखें। Who is that? So he came under Satan. शैतान के अधीन मनुष्य आ गया। Then what spirit was operating? कौन सी आत्मा जो है कार्य कर रही थी? Other translations?
दूसरे अनुवादों में refuse to obey God. Hmm? This ruler continues to work in people who refuse to obey God. So what do you call that spirit? तो उस आत्मा को आप क्या कहोगे? Spirit of disobedience. आज्ञा ना मानने वाली आत्मा। Then, third verse. और तीसरे वचन में आएंगे, What does it say? ये क्या कहता है? Here. यहाँ पर तीसरे वचन में क्या कहता है? So according to the flesh. शरीर के अनुसार। Then continue. और आगे, And of the mind. Yes, and of the mind. और मन की इच्छाओं के अनुसार। Now look at this. इसकी और हम देखेंगे, Man separated from God मनु- came under the control of Satan. मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हुआ शैतान के अधीन आ गया। Are you following that? क्या आप इसे समझ रहे हो? He came under Satan. और वो शैतान के What अधीन आ गया। spirit entered him? तो कौन सी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई? मनुष्य के अंदर Spirit of. This is a very special spirit. आज्ञा ना मानने वाली आत्मा, और ये एक विशेष आत्मा है। Earlier we will see that later. Adam, when he was created, God breathed His spirit into him, and man became a living soul. पहले हम देखते हैं कि आदम के ऊपर परमेश्वर ने अपने जीवन की सांस को फूका और वो एक जीवित मनुष्य बन So गया। what spirit was in Adam? तो आदम के अंदर कौन सी आत्मा थी? God's spirit. परमेश्वर की आत्मा। Now when God's spirit left him, what spirit came in? जब परमेश्वर की आत्मा उसको छोड़कर चली गई तो कौन सी आत्मा उसके अंदर बस गई? Spirit of disobedience. और आज्ञा ना मानने वाली आत्मा। As long as the spirit of disobedience is in any man or woman, he cannot obey God. जब तक आज्ञा ना मानने की आत्मा एक पुरुष और स्त्री के अंदर है, वो परमेश्वर की बातों का आज्ञा पालन नहीं You कर can सकता। make any decision, you cannot obey God. आप कोई भी निर्णय ले लो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पालन कर पाओगे। That's what you were saying in the morning. वही हम जो है सुबह भी कह रहे थे, I'm not able to obey. मैं जो है आज्ञा पालन नहीं कर पा You रहा। pretend to obey somewhere, आप ऐसा दर्शाते हो, दिखावटी में दर्शाते हो कि आप पालन कर रहे हो, that is not obedience. लेकिन वो आज्ञाकारिता नहीं है। That's trying to do something. वो आप कुछ करने का प्रयास कर रहे हो। Obedience is joyfully and willingly done. और जो आज्ञाकारिता है वो आनंद के साथ और सुइच्छा से की जाती है। What you do then? तो फिर आप क्या करते हो? Do whatever you want. आपको जो करना है आप करते हो, And you call that God enabled me. और आप फिर बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया। No. नहीं। So, if 20 people are trying to hold you, अगर 20 लोग आपको पकड़ने की कोशिश पर हैं, they are trying holding you. आपको पकड़ के रखे हुए हैं, If you try, you will escape. क्या अगर आप छुड़ाना चाहोगे तो अपने आप को छुड़ा पाओगे? Any use in trying? This is greater than that. और ये उससे भी बड़ा है। The spirit of disobedience is the spirit of Satan. और आज्ञा ना मानने वाली जो आत्मा है वो शैतान की आत्मा है। You find that in small children. और आप छोटे बच्चों में इसे पाते हो। You tell the children to do anything, they don't do it. और अगर बच्चों को कुछ करने बोले तो वो नहीं करेंगे। Come here, they go there. इधर आने बोलो तो वो उधर चले जाते हैं। Sleep, they want to play. और सोने बोलो तो वो लोग खेलना चाहते Eat, हैं। they don't eat. उन्हें खाना खाने बोलो तो वो लोग खाना नहीं खाते हैं। His father says unbearable. और पिता कहता है ये सहने से भी अधिक है। Beating, hitting, everything happens. मारना, पीटना सब कुछ होता है।
Nothing happens. लेकिन कुछ होता नहीं है। Now he falls under God, near God and says, God, my son is not obeying. और वो परमेश्वर के सामने दंडवत होता है, कहता है परमेश्वर मेरा बेटा नहीं सुन रहा है It's breaking my heart. और ये मेरे दिल को बहुत ही तोड़ दे रहा है। Does it break your heart? क्या आपके हृदय को ये तोड़ देता है? Oh, I'm so sorry. मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ। Do you know I had the same problem with you also? और क्या तुमको मालूम है कि मुझे भी तुमसे यही दिक्कत है? Have you ever obeyed me? क्या तूने कभी भी मेरी बातों को, आज्ञाओं को माना है? The parents who pray for obedience of children, have you ever obeyed God? जो माता पिता अपने बच्चों की आज्ञाकारिता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या वो माता पिता ने परमेश्वर की बातों को माना है? Same spirit goes there also. वही आत्मा भी उधर घुस जाती है। Then you use stick to make them obey. फिर आप छड़ी का इस्तेमाल करते हो ताकि वो आज्ञाओं को माने। Then he gives you freedom. उसके बाद वो आपको आज़ादी The देता devil है gives you freedom और शैतान आपको आज़ादी to देता do है। whatever your flesh and mind wants. जो कुछ आपका शरीर और मन करना चाहता है। Ah, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Whatever your flesh and mind wants. और जो कुछ आपका शरीर और मन चाहता है। Somebody tells him, Jose, don't do these things. और अगर कोई मुझे कहे जोस ये मत करना, നീ ആരാടാ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടോ तू कौन है मुझसे बोलने वाला, मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। ഭരിക്കാനൊന്നും വരണ്ട. मुझ पर जो है ज़्यादा अधिकार जताने मत आ। Can anyone make you obey? क्या कोई आपको मेरे को आज्ञाकारिता करने के लिए दबाव डाल सकता है? I will do what I want. मुझे जो करना है मेरी मनमर्जी में करूँगा। Now God has to help me for this. और परमेश्वर आप मुझे मदद करो इस चीज़ के लिए। That's our prayer. वो हमारी दुआ है। And now which God helps you? और कौन सा परमेश्वर आपको मदद करता है? God of this world. ये संसार का जो प्रभु है। He helps you to do whatever you want. आपको जो कुछ करना है उसके लिए आपको मदद करता है। Then you say, praise the Lord. उसके बाद आप कहते हो प्रभु की स्तुति हो। Which Prabhu? कौन सा प्रभु? And you come and share testimony. फिर आप आकर गवाही भी बांटते हो। Remember, this is not from God of this universe. और ये याद रखें ये इस ब्रह्मांड के परमेश्वर की ओर से नहीं है। The Lord said, I came to do the will of my Father, not my will. प्रभु ने कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ, मेरी इच्छा को नहीं। Have you read it? क्या आपने इसको पढ़ा है? Where is it written? कहाँ पर लिखा है ये? John 5, यूहन्ना 5 19. 5 का 19 No, 19 and 30. 19 और 30। Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. Whatever he does, the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself does, and he will show him greater works than these. Okay, than 30. 30। I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, the will of the Father who sent me. Now, do you think this God is going to help you to do what you want? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर आपको मदद करेगा जो आप करना चाहते हो? John 17:18. यूहन्ना 17 का 18। यूहन्ना 17 का 18। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। So why did the Father send the Son? तो क्यों पिता ने पुत्र को भेजा? Son, go and do whatever you want. बेटा तेरे को जो कुछ करना है तू जाकर कर। Is that why he sent? क्या इसलिए भेजा? Then why he was sent? क्यों भेजा पुत्र को? So the Son says, I did not come to do my will,
but the will of the one who sent me. तो पुत्र कहता है मैं आया हूँ मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरी करने के Now, लिए। as the Father has sent me, so have I sent you. जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। Now, can you go and do what you want? तो क्या आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से कर सकते हो? Then what question you must ask? तो आपको क्या सवाल उठाना है? Eh? Did you ask it? क्या आपने पूछा है कि इच्छा क्या है? Here is a problem. और यहाँ पे है समस्या, Here comes the rebellion. और यहाँ पर जो है बलवा करना आता है। Rebellious spirit will say, I will do what I want. और बलवा करने वाली आत्मा क्या कहेगी? जो मुझे करना है मैं करूँगा। That way of living is called the course of the world. और इस प्रकार का जीवन यापन करना मतलब संसार की रीति पर चलना। Now, man separated from God is living according to Satan, spirit of disobedience, according to his flesh, according to his mind. और मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हुआ वो शैतान के अधीन में है और आज्ञा ना मानने वाले की आत्मा के अधीन है, और वो अपने शरीर में है और उसका मन भी शैतान के अधीन है। So he does what the mind and the flesh wants. और वो जो करता है जो उसका शरीर और मन चाहता है। Your flesh and mind doesn't want to obey God. और आपका शरीर और आपका मन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहता, But just the opposite. और वो उसके एकदम विपरीत में। So what happened to this man? तो क्या हुआ इस मनुष्य के साथ? Third verse, last part. Ephesians 2:3, last verse. एफिसियों 2:3 का अंतिम भाग। और अन्य लोगों के समान स्वाभाविक ही से क्रोध की संतान थे, Children of the wrath of God. और परमेश्वर की क्रोध के संतान। Do you know what is the meaning of that? तो आपको क्या मालूम है इसका अर्थ क्या है? What's the meaning of that? क्या है इसका अर्थ? John 3:18. यूहन्ना 3:18। यूहन्ना 3:18। उस पर विश्वास करता है उस पर डर की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहरेगा, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। What happened? क्या हुआ यहाँ? English. अंग्रेजी में Anyone who believes in him is not condemned, but anyone who does not believe is already condemned, because he has not believed in the name of the one and only Son of God. Already? One and only Son of No, God. already condemned. तो उसको दंड दिया गया है। 3:36. 3:36। पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Now, how do you understand this? कैसे आप इसे समझते हो? A man is condemned when? एक मनुष्य को कब दोषी ठहराया जाता है? Kab. A man is condemned when? एक मनुष्य को कब जो है दोषी ठहराया जाता है? Look at the Bible. 3:18. 3:18। When is that? कब है वो? At the age of 5 or 10 or 20 or 25 or 70. कब, कौन सी उम्र में विश्वास नहीं करता? 5, 10, 15, 20, 50, When 70। does condemnation begin? और जो है दोषी ठहराना या दंड की आज्ञा कब शुरू होती है? From birth, he says, जन्म से ऐसा कह रहे हैं। that is for me it is 75. मुझे जो समझ का जो मेरा उम्र है वो 75 है, For you it is 5. आपके लिए 5 है। So,
When? जब बपतिस्मा हो चुका अगर उसके बाद हम बपतिस्मा होने के बाद भी हमें पता है कि हमें पाप नहीं करना पर हम फिर भी उसको नहीं मानते। I didn't take baptism, then what will happen? अगर मैंने बपतिस्मा नहीं लिया है तो Before baptism you are all right. बपतिस्मा के पहले आप सब सही था, Then when does condemnation begin? तो दंड की आज्ञा या दोषी ठहराना कब हुआ? At the time when he receives the gospel. Pardon? At the time when the person receives the gospel first time. I heard it at 75. मैं 75 साल की उम्र में मैंने सुसमाचार सुना। For you, when does it begin? आपके लिए ये कब शुरुआत हुआ? Study 3:18 and 3:36. और आप पढ़ें 3 का 18 और 3 का 36। You are dead in sin and trespasses. When? आप पाप और अपराधों में मरे हुए थे कब? At the time of? Born. Before birth you were all right? जब आप जन्म के पहले आप सही थे क्या? My mother conceived me in sin. मेरे माँ ने मुझे पाप में गर्भ में धारण किया। Oh. Don't think you were all right first and then you became somebody. पहले ये मत सोचो कि आप पहले एकदम सही थे उसके बाद आप कुछ बन गए। Condemned already. आपको दोषी ठहराया जा चुका है। Condemned already. आपको पहले से ही दोषी ठहराया जा You चुका will है। not see life. आप जो है जीवन नहीं देखोगे। 3:36 read. 3 का 36 पढ़ेंगे। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र नहीं मानता वह जीवन को नहीं जीतेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। Yes. Why? क्यों? How did man become a living soul? कैसे जो मनुष्य एक जीवित जो है देह बन गया? Genesis 2:7. उत्पत्ति 2 का 7। उत्पत्ति 2 का 7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Okay. So Adam was made from mud and the Spirit of God was given to him. He became a living soul. आदम को मिट्टी से रचा गया और परमेश्वर की आत्मा उसे दी गई और वो एक जीवित देह बन गया। How were animals were made? और कैसे जानवरों की सृष्टि हुई? 2:19 you read. 2 का 19 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बने पशुओं और आकाश के सब हाथी So how were they made? तो कैसे बने थे? In the first chapter he says let them be, but he says how he was made from the same dust. और पहले अध्याय में कहा था वो हो जाए तो हो गया, लेकिन बाद में कहता है कि उसे कैसा बनाया गया? उसी मिट्टी से बनाया गया। Now what is the raw material for man and animal? और कौन सा जो कच्चा माल है जो मनुष्य और जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया? Same dust. Same वही dust. मिट्टी। Not only carbon, there are many other. Okay. कार्बन ही केवल नहीं और भी चीजों का How इस्तेमाल did हुआ he है। become a living soul? कैसे वो एक जीवित प्राणी बन गया? The presence of God's Spirit in man. और जो परमेश्वर की आत्मा जो मनुष्य के अंदर थे। What was the instruction to man? और मनुष्य को क्या निर्देश दिए गए थे? The day you sin, you will die. जिस दिन तुम पाप करोगे तुम मर जाओगे। Now you may ask, why did God do that? और आप ऐसा पूछ सकते हैं क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? For that you need to study 2 words. इसके लिए आपको 2 वचनों का अध्ययन करना पड़ेगा। What is that? Innocent. और ये जो है निर्दोष। Innocent means what? और निर्दोष मतलब क्या अर्थ बनता है? Free of sin. No. पाप से मुक्त नहीं। You say,
who are innocent, you say? आप क्या कहेंगे? निर्दोष हैं बोले Eh? Children. बच्चे। At any time when you were a child, you were innocent. का कभी कौन से समय में जब आप बच्चे थे तो आप निर्दोष थे? अभी नहीं। You were all crooked. आप सब जो है बड़े ही सियाने थे। Were you innocent? क्या आप निर्दोष थे? Eh? 100%। वो भी एक निर्दोषपन है। So what is innocence? तो क्या है निर्दोष होना? He does not know sin. उसको पाप क्या है मालूम नहीं है। Who is innocent? कौन है निर्दोष? Who is the only person who is innocent? कौन है Was वो innocent? एक व्यक्ति जो निर्दोष था? Jesus. Jesus is holy. यीशु मसीह पवित्र है। What is holiness? और पवित्रता क्या है? You know sin and you won't do it. आपको पाप मालूम है लेकिन आप पाप करते नहीं हो। Does God know sin? क्या परमेश्वर को पाप मालूम है? But he won't commit sin. लेकिन वो पाप करेगा नहीं। Who was the only person who was innocent? कौन है एक ही व्यक्ति जो निर्दोष है? Adam when he was created. आदम जब उस Pardon? वो I will come later. So Jesus is holy. Adam was innocent. यीशु मसीह पवित्र है, आदम निर्दोष है। Innocence, you don't know sin. और निर्दोष मतलब आपको पाप क्या है मालूम नहीं है। Holiness, you know sin, but you won't do it. पवित्रता मतलब आपको पाप क्या है मालूम है लेकिन आप पाप करोगे नहीं। How do you make an innocent person holy? कैसे आप एक निर्दोष व्यक्ति को पवित्र बनाओगे? You must know sin तो आपको पाप क्या है जानना and पड़ेगा not do it. और उसको नहीं करना भी है। So God gave man a choice. तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक चुनाव दिया कि वो चुने। Do not eat that fruit. उस फल को मत खाना। The day you eat, you will die. जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे। Decision making was there in man. और निर्णय लेने का अधिकार मनुष्य के पास था Because God has given him free will. क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुइच्छा दी है। God created man with free will. परमेश्वर ने मनुष्य को आजादी के साथ सृष्टि की। He could choose. वो निर्णय चुन सकता है। What did he do? उसने क्या किया? He did not believe God. उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। He did not believe God. उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया And he sinned. और उसने पाप किया। Now what, he became holy or unholy? तो वो क्या बना? पवित्र की अपवित्र? अपवित्र। Now holiness and unholiness cannot stay together. पवित्रता और अपवित्रता एक साथ नहीं रह सकती। Light and darkness cannot be together. उजियाला और अंधेरा एक साथ नहीं So रह what सकता। happened? Man separated from God. मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग हो गया God's spirit separated. और परमेश्वर की आत्मा भी अलग हो गई He was sent out from God's presence. और उसे जो है भेज दिया गया परमेश्वर की उपस्थिति से। Remember, this is living soul. Here he is merely existing. और ये एक जो यहाँ पर जो मनुष्य जीवित प्राणी था और यहाँ पर केवल वो जी रहा है। Life living is different from existence. और जीना और अस्तित्व में फर्क है। दोनों में जीना और अस्तित्व में दोनों में फर्क है। Do you want to write down and keep? क्या आप Living existence. और जीना और अस्तित्व। The beginning, man was living. शुरुआत में मनुष्य जीवित प्राणी था। Now he lost his life. और अभी उसने अपने जीवन को खो दिया है। But he is existing. लेकिन वो अभी भी अस्तित्व में है। I will give you an example, crude example. मैं आपको एक जो है उदाहरण दूंगा। A lizard is in the house. Lizards. चिपकलियां जो है घर में हैं। You chase it to drive it out. और आप उसका पीछा करते हो कि उसे बाहर खदेड़ो। After some time, what it will do? और कुछ समय बाद वो क्या करेगा? Cut off its tail and run. और अपने पूंछ को काट कर वो भागेगा। What will the tail do? और जो पूंछ क्या करेगी? It will go on moving और पूंछ जो है हिलती रहेगी। for 2 or
2.5 minutes it will move. 2 से 2.5 मिनट तक पूंछ हिलती रहेगी। Does it have life? क्या पूंछ के अंदर जान है? No. नहीं। Then how does it move? तो वो कैसे हिल रहा है? A distant scientific term can be protoplasmic movement. तो एक जो विज्ञान से जुड़ा हुआ जो शब्द है प्रोटोप्लास्मिक मूवमेंट या उसका हलचल। Then it will die. उसके बाद 2-2.5 मिनट के बाद वो पूंछ मर जाएगा। Adam separated from God, आदम जो परमेश्वर से दूर हुआ and children of Adam separated from God, और जो आदम के बच्चे संतान जो परमेश्वर से दूर हुए, all have protoplasmic movement for 70 to 80 years. और सबको जो है प्रोटोप्लास्मिक बोल के जो हलचल है 870 या 880 साल होते हैं। They can get up and walk, वो उठ के चल सकते हैं, eat and drink, खा पी सकते हैं, work, काम कर सकते हैं, marry, शादी कर सकते हैं, have children, बच्चे पैदा कर सकते हैं, but they will go to लेकिन वो eternal death. अनंत काल की मृत्यु की ओर जाएंगे। The Lord said, और प्रभु ने कहा they're all going to eternal death. और वो सब जो है अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं। Should they do anything? क्या उन्हें कुछ करना है? No. नहीं। Should they do any sin for that? क्या उनको क्या कुछ पाप करना है इसके Why लिए? they go to eternal death? क्यों वो अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं? There is no life in them. क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं है। Every man, every woman हर स्त्री, हर पुरुष born in this world इस संसार में जन्म हुआ है। are born dead, वो जन्म हुए हैं, मरे होकर जन्म हुए हैं, living dead, वो जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, going to eternal death. और वो अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं। That's what the Lord said. They are already condemned. इसीलिए प्रभु ने कहा उन्हें पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। 36 he said they will not see life. और 36 में ऐसा लिखा है वो जीवन नहीं देख पाएंगे। Do you understand that? क्या आप इस बात को समझते हो? If you have doubt, I will tell again. अगर आपको संदेह है तो मैं दोबारा आपको कहूँगा। So, he may be going in a BMW. शायद वो एक BMW कार में जा रहा होगा। Who is he? वो कौन है? Dead or alive? मरा है कि जिंदा है? But you appreciate him. लेकिन आप इसकी सराहना करते हो। Oh, my goodness. Dead body is going. अरे मृत शरीर जा रहा है। He is holding a high post. इसको जो है उच्च स्थान है इसके पास। In Tamil Nadu, when I don't know here, in Tamil Nadu, when a man dies, तमिलनाडु में जब एक व्यक्ति मरता है they will make him sit in a chair like this. और वो ऐसा करेंगे कि वो उस एक मरे हुए व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाएंगे। That means he has overcome death. इसका मतलब ये है कि वो उसने मृत्यु पर जय पा लिया है। In some community, they keep a coin also on his forehead. और कुछ समाज में क्या है, एक सिक्का उसके माथे पर रखा जाता है। They will go and bury him like this. और वो जाके उसे गाड़ेंगे ऐसे जैसे बैठा है वैसे ही। Some of the bishops also buried like that. और कुछ जो बड़े बड़े बिशप होते हैं उन्हें भी ऐसे ही गाड़ा जाता है। Bishop may be different. बिशप शायद अलग होगा। Okay. So they are all going to eternal death. और ये सब जो है अनंत काल की मृत्यु की ओर जा रहे हैं। He may be highly qualified. वो काफी अच्छी योग्यता या पढ़ाई लिखाई होगी उसकी। She may be a film star. वो एक जो है फिल्म जगत की स्टार भी होगी। How many awards she got, I don't know. उसको कितने अवार्ड मिले हैं मुझे मालूम नहीं है। She is dead. वो मर चुकी है। He may be the president of America. वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो सकता है। Dead. मरा हुआ है। He can be a doctor. वो एक डॉक्टर भी हो सकता है। Dead. मरा है। You must understand this. और इस बात को समझे। So what did the Lord tell? तो प्रभु ने यहाँ पे क्या कहा? He came to the earth. वो इस पृथ्वी पर आया। He opened a new way. उसने एक नया रास्ता खोला। That way is called way to eternal life. और वो जो रास्ता है उसे कहा जाता है अनंत काल का मार्ग। He said,
I am the truth, the way and life. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, प्रभु ने कहा। No one comes to the Father except through me. और पिता के पास और मेरे द्वारा कोई भी नहीं आ सकता। Have you studied your geometry? क्या आपने अपने ज्योमेट्री का अध्ययन किया है? Do parallel lines meet anywhere? क्या समांतर रेखाएं एक साथ मिलती So हैं? what will happen to these two lines? तो इन दोनों लाइनों का क्या होगा? They will never meet. वो कभी भी नहीं मिलेंगे। So if you are in eternal death, you can only watch eternal life. और अगर आप अनंत काल की मृत्यु में हो तो आप अनंत काल के जीवन को केवल देख ही सकते हो। Now your desire is how to cross from here to here. और आपकी इच्छा है कि आप उस रेखा से इधर कैसे आएं? Jump? उछलें? No. नहीं। How do you come there? कैसे आप आओगे? John 5:24. Next verse. यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। English? अंग्रेजी में। Verily, verily, I say unto you, he that heard my word and believed on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Another translation different. दूसरा अनुवाद इससे अलग। I assure you, anyone who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not come under judgment, but has passed from death to life. Pass from death. Any other word? और मृत्यु से पार होकर। दूसरा और कोई अनुवाद है? Already left death and entered life. Okay. Crossed over from death to life. और मृत्यु से पार होकर जीवन में। How does he cross over? कैसे उसने पार किया? Believing whom? किस पर विश्वास कर कर? Believing whom? किस पर विश्वास कर कर? Jesus Christ. No. Read the word. यीशु मसीह पर नहीं, पढ़ें। बेचने वाला कौन है? Believe the Father. पिता पर विश्वास किया। Don't change the Bible verses. और बाइबल के वचनों को ना बदलें। Believe. What do you believe in the Father? आप क्या विश्वास करते हो पिता पर? 3:16. 3:16। Immediately you memorized, you will come. Okay. But read that. आपको याद है, वो आएगा आपके मुंह पे, लेकिन उसे person. पढ़ें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। He crosses over from death to life. और वो मृत्यु को पार करके जीवन में आता है। What do you call this? इसे आप क्या कहते हो? Born again. दोबारा जन्म लिया। This is what is called born again. इसे कहा गया है दोबारा जन्म You लिया। are born dead, living dead, going to eternal death. और आप जन्मे मरे हुए थे, आप जी कर भी मरे हुए थे और अनंत काल के मृत्यु की ओर जा रहे थे। John 3:3. Next verse. यूहन्ना 3:3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। English. अंग्रेजी में। Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. With even a telescope. He cannot see the kingdom of God even. और वो जो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता Unless he is born again. जब तक वो दोबारा जन्म या नए सिरे से जन्म नहीं लेता। John 3:5. यूहन्ना 3:5। Unless he is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now after seeing only you can enter. जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी देखने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। हिंदी में आप पढ़िए। पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न
जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। What is this? We'll have to study now. और ये क्या है, इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। Next person. 1 Peter chapter 1, 23. पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां वचन। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी जीत से परमेश्वर के जीत से और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। How did he born again? तो वो कैसा दोबारा जन्म लिया है? See, having been born again, not of corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. So were you born again? तो कैसे आपको नया जन्म मिला? Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। James 1:18. याकूब 1:18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की मूल वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। So how are you born again? तो आप कैसे दोबारा जन्म लिए हो? So in Bible, word is compared to water. और बाइबल में जो वचन है उससे पानी के साथ तुलना की गई है। Man is not born of work but by grace. और मनुष्य जो जन्मा है वो कामों से नहीं लेकिन अनुग्रह से। We will see what is the word of God that creates life. और हम देखेंगे जो क्या है परमेश्वर का वचन जो जीवन की सृष्टि करता है। Romans 8:11. रोमियो 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Look at above, God's Spirit. ऊपर देखें परमेश्वर की आत्मा। Left man, he is dead now. वो पर मनुष्य से दूर हो गया और मनुष्य मर गया। If the Spirit of God comes to dwell in you again, अगर परमेश्वर की आत्मा दोबारा आपके अंदर बसने आती है, he who raised Christ from death जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, will give life to your mortal body. वो तुम्हारे नश्वर देहों को भी जीवन देगा। Who and who works together now? और यहाँ पे कौन और कौन मिलकर काम कर रहा है? Word of God and Spirit of God. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की Unless you are आत्मा। born of water and spirit, you will not see life. जब तक आप जो है आत्मा और पानी से नहीं जन्मोगे आप जीवन नहीं देख पाओगे। Now, this is a very fundamental part of Christian life. और ये जो बहुत ही बुनियादी भाग है मसीह जीवन का, Born again. दोबारा जन्म लेना। Many are in the church who are not born again. कलीसिया में बहुत हैं ऐसे जिन्होंने दोबारा जन्म नए सिरे से जन्म नहीं We लिया will है। study that. हम उसका भी अध्ययन करेंगे। John 1, 13th verse. यूहन्ना 1:13। One after. Natural descent. Any other translation for that? दूसरा और कोई अनुवाद? Who were born not of blood. Not of blood. ना तो लहू से। What is it? Your father, your mother were Christians. आपके माता और पिता मसीह थे You used to accompany them to church. और आप उनके साथ कलीसिया में जाते थे। After that time, you have membership in church. और उनके समय होने के बाद अभी आपकी सदस्यता है कलीसिया में। Are you born again? क्या आप दोबारा जन्म लिया है? No. नहीं। Because God has no grandchildren, He has only children. और परमेश्वर के क्या है, पोते पोतियां नहीं है, केवल उसके संतान ही हैं। In the name of parents, you cannot be a Christian. आपके माता पिता के नाम पर आप मसीह नहीं बन That is what सकते। is meant by blood. और वही कहा गया है लहू। What's the next one? अगला क्या है? Human decision. और ना मनुष्य के निर्णय के हिसाब से। Now we इच्छा are से। going to say, tomorrow onwards I am going to be born again. मैं अगर ऐसा कहूँ कल से मैं नए सिरे से जन्म लूंगा, No, it cannot happen. नहीं, ये नहीं हो सकता। Third, तीसरा,
Husband's will, another translation, will of the flesh. शरीर की इच्छा। No, here. Somebody else is telling you, come to my church, I will make you born again. कोई आपसे कहता है मेरे कलीसिया में आओ, मैं आपको नए सिरे से जन्म दूंगा। Nobody else also. दूसरा और कोई नहीं। Fourth, चौथा, born of God. परमेश्वर से उत्पन्न। This new birth, born again, is the wonderful, mysterious work of God in any person. और ये जो नए सिरे से जन्म हुआ सबसे अति सुंदर और सबसे रहस्यमय एक बात है परमेश्वर का। You won't understand fully because it's beyond understanding. और ये आप इसको पूरी तरह समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपके समझ के परे है ये। But when it happens, you know it. जब ये घटित हो जाता है तो आप इसे जान जाते हो। Unless you are born again, जब तक आप दोबारा जन्म नहीं लेते, you have many difficulties. आपको बहुत सारे मुश्किलात रहते हैं। 1 Corinthians 2:14. पहला कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उसे जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। The problem is the man without the Spirit trying to understand the Bible truth. और मनुष्य जो बिना परमेश्वर की आत्मा से बाइबल की सच्चाई को जानने की कोशिश करता है, he will run into lot of difficulty. वो जो है कई समस्याओं में घुस जाएगा। Because the realities of God are beyond rational mind. और क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई जो है हमारे कारण निकालने वाले दिमाग से काफी परे है। Whatever is not rational is foolishness for a rational man. और जो कारण अगर किसी चीज का नहीं है, वो उस व्यक्ति के लिए मूर्खता है। Sea divided, impossible. समुद्र का विभाजन होना असंभव। Earth stopped, no. पृथ्वी का रुकना नहीं। Dead person rose, no. मरे हुए जिलाए गए नहीं। No. नहीं। Nothing can happen. कुछ नहीं हो सकता। So they all reject these things. ओ ये सब बातों का इनकार करते हैं। It is foolishness. ये मूर्खता है। It's very important for you to understand this. If you are going to share some of the teachings of the Bible to a person who does not have the Spirit, you may run into difficulties. मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर के वचन से सिखा रहे हैं और उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। So what you will do is you will present the gospel with reason. तो आप क्या करोगे? आप सुसमाचार को कैसे बांटोगे? कारणों के द्वारा। You will try to defend the gospel through your arguments. और आप जो है उसको विरोध करोगे अपने बहस के द्वारा। You will become an apologetic. फिर आप जो है धर्म के बारे में उस जो भी बात करता है उसे आप जो सामना करने वाला बन जाते हो। It's needed for those who rely only on reason. और ये उनके लिए है जो केवल कारण पर विश्वास करते हैं। The intellectuals may have to be confronted with intellect in the beginning. और जो बुद्धिमान लोग हैं उनका आमना सामना पहले बुद्धि से ही किया जाता है। Sometimes it will happen. और ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। But लेकिन he cannot understand the things of God through reason. लेकिन आप परमेश्वर की बातों को कारणों से नहीं जान सकते। Those who understand things with reason, जो कारणों के द्वारा चीजों को समझते हैं, when a person with a higher intellect comes there and presents something else, और जब एक ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कुछ बातों को आके आपके सामने रखता है, what he will do, he will run to that man. तो वो क्या कहेगा? जिसको कम मालूम है वो जिसको ज्यादा मालूम है उसके पीछे जाएगा। When Mr. Vivekananda went to America, जब श्रीमान विवेकानंदा जी अमेरिका गए, when he presented his philosophies, जब उन्होंने अपना तत्वज्ञान वहाँ पे बताया, lot of people turned to him. बहुत सारे लोग उसकी ओर झुक गए।
If somebody comes with higher wisdom, they will run to him. और दूसरा और कोई इससे ज्यादा ज्ञान लेके आएगा तो वो उसके पीछे हो लेंगे। 1 Corinthians chapter 2, 1 to 4. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से लेके 4 तक। And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of spirit and of power. Continue. That your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. What is the problem? यहाँ पर क्या है समस्या? Athens were a place where rationalists lived. एथेंस जो ऐसी जगह है जहाँ पे कारण बताकर निर्णय लेने वाले लोग रहते They थे always wanted to know new things. और उनको हमेशा नई चीजें जानने की चेष्टा थी। There were many arenas, many halls where the arguments will go on. और बहुत बड़े बड़े मैदान जगह होते थे जहाँ पर जो है बहस होता था Great philosophers were there. और बहुत तत्वज्ञानी लोग वहाँ पर होते थे। When Paul came, जब पौलुस आया, he was a very learned man. काफी जो है सीखा हुआ व्यक्ति था पौलुस। He had a temptation उसको एक परीक्षा हुई whether I should also use eloquent speech. और क्या मैं भी जो है अच्छे तरह से प्रचार करने के बारे में सोचूं Powerful speech. और सामर्थी प्रचार With thunder and lightning. और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ प्रचार। He knew something. उसे कुछ मालूम था। Then their faith will depend on human wisdom. तब उनका जो विश्वास है मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर होगा। It won't depend on God's power. तब वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर नहीं होगा। So he says, I came with fear and trembling here. वो कहता है कि मैं भय और थरथरा कर आपके सामने आया, Lest I will fall into the temptation of presenting gospel with my wisdom. और कि मैं जो है परमेश्वर के सुसमाचार को अपने ज्ञान से आपके सामने प्रदर्शित करूं। Very learned man. काफी सीखा हुआ व्यक्ति Sat under Gamaliel and learned. और गमेलियल के पास बैठकर उसने पढ़ाई की है। What is this rational faith? तो ये जो कारण के द्वारा विश्वास ये क्या है? Wisdom based on, there says, what is that wisdom said? वो कौन सा ज्ञान है जो बताया गया है? You read it. पढ़े। Faith based on human wisdom. Wisdom of man, rational faith. और मनुष्यों का ज्ञान जो कारण से जुड़ा हुआ। One simple example. एक साधारण सा उदाहरण। Now a couple were praying for a child. एक जोड़ा जो है वो बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था After many years they got a child. और कई सालों के बाद उन्हें एक बच्चा मिला। They were so happy. वो काफी खुश थे, Thanksgiving. धन्यवाद, They were sharing testimony. और वो गवाहियां बांट रहे थे। God is good. परमेश्वर भला है, My God has answered my prayer. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। 1 week later, pediatrician examined the child. और एक हफ्ते के बाद जो बच्चों को देखने वाला डॉक्टर है उसने बच्चे की जांच की। Child needs a open heart surgery. और बच्चे को जो है उसका दिल खोलकर उसके ऑपरेशन करने की जरूरत है। May not survive sometimes. शायद बच्चा जिंदा रहेगा भी, नहीं भी रह सकता है। Father and mother said, what a horrible God. और माता पिता ने कहा कितना जो है दर्दनाक परमेश्वर है। Good God became horrible God. जो अच्छा भला परमेश्वर एक दर्दनाक परमेश्वर बन गया। What happened to this God? क्या हो गया इस परमेश्वर को? You are reasoning God from your experience. आप कारण दिखा रहे हैं परमेश्वर को अपने अनुभव के द्वारा। Inference. Inferring God. और परमेश्वर को उस पे ला रहे हो। Good thing he did, so he is good. उसने भले काम किए हैं तो वो भला है। There is sun, there is moon, there is star. सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं। So there must be a God who created it. और फिर एक परमेश्वर भी है जिसने उसको बनाया है। We can call this God as an inferential God. और हम इस परमेश्वर को कह सकते हैं जिसने इसकी रचना की है।
Now suddenly, one day there is no sun, moon and star. और अचानक से एक दिन सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, तारा भी नहीं है, Child has developed a hole in the heart. और बच्चे के हृदय में छेद है. Inferential God disappeared into thin air. Inferential God disappeared into the thin air. Means he disappeared. और परमेश्वर जो जिसने रचना की है वो पतली सी जो हवा में है वो निकल गया. Where is God? परमेश्वर किधर है? Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Why? You have a different experience now. तो अभी आपका अनुभव जो है एकदम अलग है. This is not God. ये परमेश्वर नहीं है. Most of the people's God is inferential God. और बहुत सारे लोगों का परमेश्वर वो है जो कुछ चीजों को बनाता है या उन्हें देता है. Their God is God. Their faith is depending on human wisdom. और उनका जो विश्वास है मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर है. When difficulties come, they have no faith. जब मुश्किलात आते हैं तो उनके अंदर कोई विश्वास नहीं रहता है. When the healing doesn't happen, they lose faith. जब चंगाई नहीं होती है तो विश्वास चला जाता है. When they lose their job, they lose their faith. और जब उनका नौकरी चला जाता है तो उनका विश्वास चला जाता है. But faith depending on power of God. लेकिन जो विश्वास परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है, What is that? वो क्या है? Faith says God is. और विश्वास कहता है परमेश्वर है. Hey means what? है का मतलब क्या है? Whether sun, moon, star is there or not, God is. सूर्य, चंद्रमा, तारा है या नहीं, लेकिन परमेश्वर है. Whether answer comes to me or not, God is. मुझे उत्तर मिले या ना मिले, परमेश्वर है. Whether I exist, you exist or not exist, God is. मेरा अस्तित्व है या मेरा अस्तित्व नहीं है, फिर भी परमेश्वर है. That is why when Moses asked, "What is your name?" he said, "I am that I am." जब मूसा ने परमेश्वर से उसका नाम पूछा, परमेश्वर ने कहा मैं जो हूँ वो मैं हूँ. I do not exist because of your belief. और मैं अस्तित्व में ये इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तू विश्वास करता है. Some of you are threatening God sometimes. कभी कभी आप जो है परमेश्वर को धमकी दे देते हो. If you don't answer my prayer, I won't pray. अगर आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दोगे तो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा. Then I won't give my tithe also. मैं फिर अपना दशांश भी नहीं दूंगा. Then you will go into starvation and die. फिर आप भुखमरी में चले जाओगे और परमेश्वर आप मर जाओगे. Then immediately God will say, "I will answer you, otherwise you sustain me." और परमेश्वर क्या कहेगा, तो मैं तुझे उत्तर दूंगा क्योंकि तू ही तो मुझे चलाता है. Fun. Many people are thinking God is. I am that I am. परमेश्वर मैं जो हूँ वो मैं हूँ. And he rewards those who seek him earnestly. और वो उनको प्रतिफल भी देता है जो पूरे दिल से उसे खोजते हैं. Okay. And that's why the Lord told in Matthew 11:27. इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा मत्ती 11 का 27. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे. बस. Nobody knows the Father except the Son, and to whom the Son is willing to reveal. और क्या पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और जब तक पुत्र उसे प्रकट ना करना चाहे. Okay, that is something beside I mentioned. और वो कुछ थोड़ा सा अलग है जिसकी मैंने यहाँ पर Now, आपको you बताया. must be born again. और आपको जो नए सिरे से जन्म लेना है. What are the characteristics of people who are born again? जो नए सिरे से जन्म लिए हैं उन व्यक्तियों की विशेषताएं क्या हैं? You cannot, first I mentioned, you cannot listen to the word of God if there is no Spirit of God. मैंने कहा आप परमेश्वर के वचन से सुन नहीं सकते अगर आपके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है. In John 8:48. यूहन्ना 8 का 48 47 47. The one who is from God listens to God's word. This is why you don't listen, because you are not from God. Yes. Difficulty in listening to God's word and understanding
is not because of language problem. और परमेश्वर के वचन को ना समझना और दिक्कतें आना वो भाषा नहीं जानने के कारण नहीं है, Then birth problem. वो जन्म से ही समस्या है। You are not born again. आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया You है, won't understand. आप इसे नहीं समझोगे। Don't say it is. I think another translation will help me. और शायद दूसरा अनुवाद अगर मैं देख लूँ ना तो वो अनुवाद मुझे मदद करेगा थोड़ा और। Same thing is written in Corinthians also. You cannot understand. और वही बात कुरिन्थियों में भी लिखी गई है, आप उसे नहीं समझ सकते। It will be foolishness. वो मूर्खता है। Message of the cross is foolishness to those who perish. क्रूस का संदेश जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है, It's completely foolish. और ये पूरी तरह से मूर्खता है। Because when Jesus Christ is calling someone, he is calling, come and die. और क्योंकि यीशु मसीह अगर किसी को बुला रहा है तो क्यों बुला रहे, आ और मर जा। What is this message? ये क्या संदेश है? I want to live happily. He is calling me to die. मैं खुशी से रहना चाहता हूँ, वो मुझे बुला रहा है मरने के लिए। You must be born again. और आपको नए सिरे से जन्म लेना है। When you go back, study all these verses. और जब आप वापस जाओगे इन वचनों का आप अध्ययन करो। Few more verses. कुछ और वचन। John 3:8. यूहन्ना 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। ऐसा ही means? ऐसा का मतलब क्या है? Eh? Like what? तो ऐसा है मतलब क्या है, किस समान है? They cannot be seen. उन्हें देख नहीं सकते क्या? What does it mean? Like this means? वो ऐसा ही है तो उसका क्या अर्थ बनता है? Each one of you may have your own understanding, but what is it? आप सबके अपने अपनी एक समझ होगी, लेकिन वो ऐसा ही है वो क्या है? No. What does it mean? Like a wind. और क्या है? वो हवा के समान है। See, the wind blows from somewhere and goes somewhere. You don't know where it comes from, where it goes. हवा चलती है, आपके पास आती है, आपको पता नहीं किधर से आई किधर को चली गई। So it's like everyone born of the Spirit. सब वैसे ही हैं जो आत्मा से जन्मे हैं। I will give you an example. मैं आपको उदाहरण दूंगा। Can you read from Isaiah, book of Isaiah 20 verse 2 and 3. यशाया 20:2 और 3। At the same time, the Lord spoke by Isaiah, the son of Amos, saying, "Go and remove the sackcloth from your body, and take your sandals off your feet." And he did so, walking naked and barefoot. Then the Lord said, "Just as my servant Isaiah has walked naked and barefoot 3 years for a sign." Okay. Now the Lord is calling you. अभी परमेश्वर आपको बुला रहा है। Remove your outer garment. Go with your undergarment only. 3 years over the streets. और आपके बाहर के कपड़ों को खोल दो, केवल अंदर जो आपने कपड़े पहने हैं उसे रखो, और 3 साल इस मोहल्ले में सड़क में घूमते रहो। Don't wear slippers also. और चप्पल भी ना पहने। What will you do? तो आप क्या करोगे? Yes, Lord. हाँ प्रभु। What will you tell? आप क्या कहोगे? Eh? He didn't tell me, he told that person. और मुझसे नहीं कहा है, दूसरे व्यक्ति से कहा है ऐसा करने के लिए। Will you do that? क्या आप ये करोगे? This is what being led by the Spirit. और इसे कहते हैं आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलना। You are not looking at reason or anything. और यहाँ पर आप कुछ कारण नहीं देख रहे हो। Whether human beings will accept or not. क्या मनुष्य लोग इसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? You will obey only the Spirit. You केवल won't आप obey anyone else. केवल आप आत्मा पर ही जो है आज्ञा को मानोगे। You will be so consistent with the Spirit. और आप इतना निरंतर हो जाओगे आत्मा के साथ। You will become inconsistent with people. और आप जो है अनिरंतर हो जाओगे मनुष्यों के साथ। Ezekiel
हिजकिय्याल was told to lie on one side for 390 days. और उसको हिजकिय्याल को कहा गया तो एक की तरफ लेटा रहे 390 दिन। How to cook your food? कैसे अपना खाना बनाना है? Use human dung to burn. और जो है मनुष्य के जो लोथ का इस्तेमाल कर उसको बनाने के लिए। He said, Lord, I have never done this. और बोला परमेश्वर मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। Okay, use cow dung. और फिर बोला तू गाय के गोबर का इस्तेमाल कर। 390 days later, he was asked to turn to the other side and lie for another 40 days. और 390 दिन के बाद उसे कहा गया तू पलटी मारकर दूसरी तरफ लेट रहे 40 दिन तक। He did that. और उसने वो किया। He told Hosea, go and marry that prostitute. उसने होशे से कहा तू जाकर व्यभिचारिणी से विवाह कर। If you are given a marriage proposal, अगर आपको ऐसा एक शादी का न्योता दिया गया तो leave those things. छोड़ दे सबको। Joe Cardick was a young man जो कार्डिक एक जवान व्यक्ति था in US. अमेरिका में। Through his hard work, he became the vice president of Ford company. और उसके मेहनत के द्वारा वो फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। Early in his life, he made a commitment with God. और अपने पहले के जीवन के समय में उसने परमेश्वर के साथ एक समर्पण किया। Whatever you tell, I will do it. तू जो कुछ कहेगा मैं करूँगा। One day from his office, when he came home, जब वो एक दिन ऑफिस से अपने घर आया, he told his wife, hold the supper, God wants to say something to me. और रात्रि भोज को रोके रखें, परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है। अगर परमेश्वर ने आपको अगुवाई दी है तो फिर मेरा आपके लिए एक काम है। Go to the cellar and polish the shoes of my soldiers. और तू बेचने वाले के पास जा और Soldiers. सिपाही के पास, Salvation Army soldiers. जो सैल्वेशन आर्मी के जो सिपाही हैं उनके पास जा, उनकी बूट की पॉलिश कर। Mud packed shoes. और कीचड़ से सना हुआ जूते। He started polishing. और वो उन जूतों को पॉलिश करने लगा। Few days later, कुछ दिनों के बाद he prayed,
उसने प्रार्थना किया, Lord, did you make a mistake? क्या परमेश्वर आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी? Did you send me here? क्या प्रभु तूने मुझे यहाँ भेजा है? He says he saw a vision of Jesus Christ washing the feet of disciples. तो उसने एक ऐसा दर्शन देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धो रहा है, He began to weep. और वो रोने लगा, Without any word, he started polishing. और बिना कोई शब्दों के वो जूतों को पॉलिश करने लगा। I do not know the time. Few months later, मुझे मालूम नहीं समय कितना, कुछ महीनों बाद they arranged, Salvation Army arranged a big tent meeting for evangelists. और साल्वेशन आर्मी ने बड़े तंबू में एक सभा रखा इस सुसमाचार प्रचार करने वाले के लिए। 25,000 people. 25,000 लोग आए। The invited preacher was not able to come. जो प्रचारक था, जिसको प्रचार करना था, वो नहीं आ पाया। The committee decided to invite Samuel Brinker. और सैमुअल ब्रकर को जो कमेटी ने निर्णय लिया कि ये प्रचार करेगा। He came into the hall. और वो हॉल में आया। People knelt down and cried out their sins. और लोगों ने घुटने टेके और अपने पापों का अंगीकार किया। He did not preach there. उसने वहाँ पे प्रचार नहीं किया। Salvation Army has recorded the place he stood is a holy place. और साल्वेशन आर्मी ने वो रिकॉर्ड किया है कि जिस स्थान पर वो खड़ा था वो पवित्र स्थान है। Being led by the Spirit. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई होना। No argument. कोई बहस नहीं। You will listen only to the Spirit. आप केवल आत्मा की ही बातों को सुनोगे। This is one of the signs of being born again. और ये एक चिन्ह है कि आपने नए सिरे से जन्म लिया है। Now, Romans 8, रोमियो 8, 9th verse. रोमियो 8 का 9। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं। Last part, you read it again. अंत का जो भाग एक और बार पढ़ दें। यदि परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं। Very clear. बहुत In स्पष्ट whom है। there is no spirit of Christ, he does not belong to Christ. और जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का नहीं है। Can the next person read 8:5? क्या दूसरा व्यक्ति पढ़ सकते हैं 8 का 5? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Now, what is the question I am going to raise? मैं क्या सवाल अभी उठाने वाला हूँ? Where is your mind occupied? कहाँ पर आपका मन जो है घिरा हुआ है? Spiritual matters or worldly matters? आत्मिक बातों में या सांसारिक बातों में? Yes. What you are always thinking about? आपके मन में क्या घिरा हुआ है, सांसारिक विषय कि आत्मिक विषय? What is your conversation? आप लोगों की बातचीत क्या रहती है? When you go for tea break, when you go for lunch, when you go for work, what is your conversation? जब आप चाय के लिए जाते हो, आप जब काम के लिए जाते हो, आप क्या बातचीत करते हो? Worldly or kingdom? सांसारिक या राज्य की बातें? Now, think of a wife. सोचे एक पत्नी के बारे में। She tells, Sunday and Monday I live with my husband. रविवार और सोमवार मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। Always thinking about मैं क्यों हमेशा जो है दूसरे आदमी के बारे में सोचती हूँ, मुझे पता नहीं। what do you call that? तो आप उस औरत को क्या बुलाओगे? Tell. बोलो। Adultery. व्यभिचार। Are we the bride of Christ? क्या हम मसीह की दुल्हन हैं? Married to Christ? क्या हम मसीह से शादीशुदा हैं? Now, what is our occupation, mind occupation? What are you thinking of always? और हमारा मन किस चीजों से घिरा हुआ है? Matters of husband or matters of enemy? और पति के विषयों के बारे में या शत्रु के विषयों के बारे में? What do you call that? तो आप क्या कहते हो उसे? Adultery. व्यभिचार। James 4, verse 4. याकूब 4 का 4। याकूब
4:4। मैं भी जानी हूँ, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Is it okay? क्या ये ठीक है? In our place, there is a community of people among whom the daughter-in-law will come and tell the mother-in-law, "Mummy, your son is living improperly." और हमारे यहाँ पे एक समाज है जहाँ पर बहू आके अपने सास से कहेगी कि आपका बेटा जो है ना वो गलत तरीके से जी रहा है। Don't take care of those things. It will be like that. आप सास कहेगी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, ये तो ऐसा होता रहता है। What do Christians say now? अभी मसीह लोग क्या कहते हैं? Don't be so strict. इतना भी ज़्यादा सख्त मत हो, It is okay. ये तो ठीक है। Enjoying the world also is okay. संसार के साथ आनंद मनाना भी ठीक ठाक है। Many Christians are married to Christ. और बहुत सारे जो मसीह हैं जिन्होंने मसीह से विवाह तो किया है, But they are not satisfied with him. लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हैं Commit flirting with the world. और वो संसार के साथ जो है खेलते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं Committing adultery with the world. और संसार के साथ व्यभिचार करते हैं। If a husband, will a husband tolerate a wife living like that? क्या एक पति सहन करेगा कि उसकी पत्नी ऐसे जी रही है? Will you? क्या आप? Read from Proverbs 6. नीति वचन 6, Last 4 verses. नीति वचन 6 का अंत के 4 वचन। नीति वचन 6 का अंत के 4 वचन। करता है वो मेरा निर्बुद्ध है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिलेगी, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वो मूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वो ना मानेगा। Will a husband tolerate this? क्या एक पति इसको सहन करेगा? Jesus, don't bother about this. यीशु मसीह इसके बारे में आप ज़्यादा चिंता ना करें। He jealously desires that will belong to him. और वो जलन से इच्छा रखता है जो उसके अपने होते हैं। Read from James 4 verse 5. याकूब 4 का 5 से पढ़ेंगे। याकूब 4 का 5। 4 and 5 both together. याकूब 4 का 4 और 5 दोनों एक साथ। क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो। What does he desire, the Spirit? तो आत्मा की क्या इच्छा है? Jealously desires that you will belong to him and him alone. और वो डाह के साथ इच्छा करता है कि तुम उसके ही और उसके ही बने रहो। Modern times it is all different in many countries. आधुनिक समय में बहुत सारे देशों में ये अलग है। They say, why are you so strict? क्यों आप इतने सख्त हो? That I should belong to you. क्या मैं तुमसे ही तुम्हारे साथ ही जुड़ी रहूं? Give me freedom. मुझे आज़ादी दो। Give me freedom. मुझे आज़ादी दो। I will live with anyone I want. और मैं जिसके साथ भी रहना है मैं रहूंगा, Shall we रहूंगी। make some adjustments? क्या हम थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे?
Is this Christian life? क्या ये मसीह जीवन है? Then how do you commit adultery with the world? तो आप कैसे संसार के साथ फिर व्यभिचार करते हो? And then you feel I am okay. फिर आप सोचते हो कि मैं तो ठीक ठाक हूँ. Now, when you fill in certain application forms, और आप जब कुछ आवेदन पत्रों को आप भरते हो, you will have some clauses you won't fill up. और कुछ जो है नियम शर्तें रहेंगी जिसे आप भरते नहीं हो. So you will write there not applicable. तो आप वहाँ पे लिखोगे मेरे लिए लागू नहीं है. For example, उदाहरण के लिए, have you been convicted in criminal cases? क्या आपको जो है अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया गया है? You will write not applicable. तो आप लिखोगे मेरे लिए लागू नहीं होता. Are you a widower? क्या आप एक विधवा हो? No, not applicable. मेरे लिए लागू नहीं होता. It's not. You won't fill in everything. आप जो है सब कुछ को नहीं भरोगे. Now, Romans 8, रोमियो 8, 5 to 9, 5 से लेके 9 तक, which is applicable to you, which is not applicable to you. कुछ क्या जो आपके लिए लागू होता है और क्या आपके लिए लागू नहीं होता है. From your life, you have to decide, read silently and find out. और शांत रीति से पढ़ें कि आपके जीवन में क्या लागू होता है, क्या लागू नहीं होता है. आपको निर्णय लेना है. Romans 8, 5 to 9. रोमियो 8 का 5 से लेके 9 तक. Can you read both? क्या आप दोनों को पढ़ सकते हो? क्या लागू होता है और क्या लागू If you नहीं? read both, it is like this: a wife telling, Monday and Sunday I live with my husband, Tuesday, Wednesday I live with someone else, then Thursday, Friday come back to husband. तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो रविवार सोमवार मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, मंगलवार बुधवार मैं किसी और के साथ रहती हूँ, गुरुवार को मैं वापस अपने पति के पास आ जाती हूँ. You can't live like that. आप ऐसे जी नहीं सकते हो. So how will you read it? तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? Read silently. और शांत से आप इसको पढ़ें और लिखें. Let them see which is applicable to them. और लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखें कि कौन सा आपके जीवन में लागू होता है और कौन सा लागू नहीं होता. Can the bride of Christ read both? क्या मसीह का जो दुल्हन है इन दोनों को पढ़ सकते हैं? Can you read? क्या आप पढ़ सकते हो दोनों को? Now which is applicable to you? आपके जीवन में क्या इसमें लागू होता है? See, when you begin to read Bible, it begin to cleanse you. जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वो ये आपको जो है साफ करता है. If it is superficially you read without understanding the meaning, you can read anything. अगर आप बाहरी इसको पढ़ना चाहते हो बिना अर्थ जाने, फिर ये आपको कोई समझ में नहीं आएगा. Now what do you run into? तो आप किस में किस What problem is there? क्या है समस्या इसके अंदर? Can anyone share? क्या आप में से कोई बांट सकता है? What's the difficulty you face? क्या दिक्कत या मुश्किलात आप सामना करते हो? Then what is the verdict? अगर आप शरीर के हिसाब से जियोगे तो आप So do परमेश्वर we belong to God? तो क्या हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? But do others आप दूसरे लोग आप लोग are क्या सोचते? convicted by reading this? आप पढ़ने के बाद आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो. दोषी ठहराने के बाद क्या आप सोचते हो? See, now you take such passages for meditation and what will happen? अगर ऐसे भागों को आप मनन के लिए लोगे तो क्या होगा? Can you proceed? क्या आप आगे बढ़ सकते हो? Now come to 14th verse. 14वें वचन में हम आएंगे, 8 का 14. इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं. Led by the Spirit, Monday and Tuesday. सोमवार और मंगलवार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाना. Or consistently. और या निरंतर. Which word you will use? आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करोगे? Nirandar or occasionally? निरंतर या फिर कभी कभी. That word is not there, but that's the meaning. वो शब्द Those who are led by the Spirit, not on Sundays. और जो आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलते हैं केवल रविवार को नहीं. Oh,
oh, then I am filled with the Spirit and praising God. और मैं आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। That's not enough. और ये काफी नहीं है। 16th verse. 8 का 16। Next verse. दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। When will a husband tell the wife, "You are my dear wife"? कब एक पति अपनी पत्नी से कहेगा तू मेरी प्रिय पत्नी है? When she is faithful to him. जब वो पत्नी विश्वास योग्य है उसके साथ all the days of her life. अपने जीवन के पूरे समय तक, Not occasion. और कुछ अवसरों में केवल नहीं। The Spirit will bear witness with our spirit that we are children of God, provided we are consistent in the relationship. और जो आत्मा है हमारी आत्मा के साथ गवाही देगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन एक बात कि आप निरंतर आत्मा के साथ बने हो कि नहीं। Pastor's witness is not sufficient. और पासवान की गवाही काफी नहीं है। If you regularly go to church and offer the tithe properly, they will say you are a born again believer. अगर आप निरंतर कलीसिया में जाओगे, दशांश दोगे, तो क्या कहोगे? आप नए सिरे से जन्म लिए हुए विश्वासी हो। You can convince another person also. आप दूसरे व्यक्ति को भी मना सकते हो। But the Spirit of God must give witness. लेकिन परमेश्वर की आत्मा गवाही देना चाहिए। Do you have that inner witness? क्या आपके अंदर वो आंतरिक गवाही है? Now turn to few more verses. कुछ और वचनों की ओर हम फिरेंगे। 1 John chapter 2. पहला यूहन्ना 2 अध्याय। Last verse 29. ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। So those who are born again will do what? जो नए सिरे से जन्म लिए हैं वो क्या करेंगे? What will they do? वो लोग क्या करेंगे? Unrighteousness, righteousness. धार्मिकता की अधार्मिकता। Yes. It doesn't say that if you do righteous work you will be born again. ये ऐसा नहीं कहता कि अगर आप धर्म के काम करोगे तो आप नए सिरे से जन्मे हो। Those who are born again will do right work. जिन्होंने नए सिरे से जन्म लिया है वो धर्म के काम करेंगे। 3rd chapter 5 and 6. 3 अध्याय 5 और 6 वचन। 3 अध्याय 5 और 6। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। What's it? अरे क्या पढ़ा आपने? Read 6 again. 6 वचन एक और बार पढ़ें। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। पाप नहीं नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। 8 and 9. 8 और 9। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Now you take a mango seed, put it in the ground, pour water. एक आम के बीज को आप लें, उसको जमीन में डालें और पानी उसमें उंडेलें। A tree comes up. एक वृक्ष आएगा। And on the tree coconuts are coming. और उस वृक्ष में जो है नारियल लदे हुए हैं। Will it come? क्या नारियल उसमें आएंगे? No. नहीं। From mango tree you will have only mangoes. आम के वृक्ष से केवल आपको आम ही मिलेंगे। 2 people got married. 2 व्यक्तियों ने शादी की। Elephant was born to them. और उनको हाथी जन्मा।
Will it happen? क्या ये हो सकता है? You are born of God, seed, and sin is coming out of me. आप परमेश्वर के बीज से उत्पन्न हुए हो, लेकिन पाप आपके अंदर से बाहर आ रहा है। Read the 9th verse again. 3:9 हम एक और बार पढ़ेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Now, 1 John chapter 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8th verse. 8वां वचन। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में से सत्य नहीं। What does it mean now? इसका भी मतलब क्या है यहाँ? 1 John chapter 2 verse 1. पहला यूहन्ना 2:1। Why is he writing? No, no. क्यों? बस बस। Read the first part alone. Why is he writing? क्यों ऐसा लिख रहा है? That you may not sin. What's the plan of God? कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर की योजना That क्या you है? may sin or you must not sin. परमेश्वर की योजना क्या? आप पाप करो या आप पाप ना करो। That is why he came, इसीलिए वो आया, to save us from sin. हमें पापों से बचाने के लिए। Because I always fall in sin, don't interpret your Bible accordingly. क्योंकि मैं हमेशा पाप में गिर जाता हूं, तो आप अपने बाइबल का वचन का अर्थ इसमें से ऐसा ना निकालें। Bible says, see, if you take an injection for hepatitis, देखिए, अगर आप एक सुई लें हेपेटाइटिस के लिए, you won't get hepatitis. तो आपको हेपेटाइटिस दोबारा नहीं होगा। Hepatitis virus will come to you, हेपेटाइटिस वायरस आपके पास आएगा, but you have immunity now. You will overcome the hepatitis. और आपके पास शक्ति है कि आप उसके विरोध में खड़ा रहो, तो आपको हेपेटाइटिस नहीं होगा। You take chickenpox injection. आप चिकन पॉक्स की सुई लेते हो, You won't get chickenpox. आपको चिकन पॉक्स नहीं होगा। 1 John chapter 5 verse 4. पहला यूहन्ना 5:4। 5:4. What does he do? वो क्या करता है जो परमेश्वर से उत्पन्न है? He overcomes the world. वो संसार पर जय प्राप्त करता है, World doesn't overcome him. और संसार उस पर जय प्राप्त नहीं करता। Why? How does he overcome? कैसे वो जय प्राप्त करता है? Continue. आगे पढ़ें। Now, when you read these verses, do you have joy and freedom? जब आप ये वचन को पढ़ते हो, क्या आपको आनंद और आजादी है? If Superintendent of Police tells you, I am with you, don't be afraid of anything. Oh, you must see how you walk about in this town. और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर आपको बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप तुमको जैसा चलना है चलो, तो देखेंगे आप कैसा चलोगे इस नगर में। How do you read that verse? आप उस वचन को कैसे पढ़ते हो? कैसे मैं जय प्राप्त करूंगा? You don't believe it. आप उस पर विश्वास नहीं करते हो। Do you believe it? You will overcome. क्या आप विश्वास करते हो कि आप उस पर जय पाओगे? Then where do you fail? तो आप क्यों हार जाते हो? John 5th chapter verse 18. यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। Your translation. We know that those who are God's children will not continue sin. Read the next one. The Son of God keeps them safe, and the evil one cannot touch them. Then why do you sin in between? फिर आप इसके बीच में क्यों पाप करते हो? That translation, see,
All vernacular translation. What is your KJV? KJV में पढ़े। We know that word is born of God, sinneth not. Sinneth not. पाप नहीं करता। Your translation does not sin. पाप नहीं करता। When it comes to our NIV, जब वो NIV में हम जब देखते हैं, he will not continue to sin. वो जो है पाप में निरंतर नहीं बना रहेगा। RSV, NASV, KJV, New KJV, all vernacular translation, everything is he does not sin. और जो अंग्रेजी के अलग अलग अनुवाद हैं और जो आपके जो लोकल स्थानीय भाषाओं के अनुवाद है उसमें लिखा है पाप नहीं करेगा। Bible translators are careful with these translations. बाइबल अनुवाद करने वाले लोग क्या इस बात का थोड़ा और ध्यान रखते हैं कि नहीं इस अनुवाद से? Yes, please. Yes, please. हाँ, कृपया कर। So, when the Son of God keeps you, you cannot sin. जब Devil does not take hold of you. जब आपको परमेश्वर का पुत्र बचाए रखता है तो दुष्ट आपको छू नहीं सकता। John 10:28 and 29. यूहन्ना 10 का 28 और 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। What will you answer devil now? अभी आप शैतान को क्या उत्तर दोगे? Provided you are in the hand of God. लेकिन ये बात पक्का कर ले कि आप परमेश्वर के हाथ में हो। If you are on the roaming, अगर आप घूम फिर रहे हो, you cannot claim this promise. आप इस वायदे का दावा नहीं कर सकते। You are on roaming now? क्या आप घूम फिर रहे हो, घूमने फिरने में हो? Your phone is on roaming. आपका जो फोन है अभी वो बाहर घूम रहा है। Yes. Now, when the promise of God for children of God is that they will overcome sin, it doesn't say that sin will not come to you. जो परमेश्वर की संतान है अगर वो पाप पर जय पाएंगे, कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं है कि पाप आपके पास नहीं आएगा। As long as devil is alive, you all will be tempted. जब तक शैतान जिंदा है हम सब की परीक्षा होगी। But all that is needed to overcome sin is given to us. और पाप पर जय प्राप्त करने के लिए जो कुछ चाहिए वो हमें दिया गया है। One of the most important part is you must be born again. और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है नए सिरे से जन्म लेना। So if you are not born again, अगर आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, sin will overcome us. पाप आप पर जो है जय प्राप्त कर But we लेगा। have a difficulty. लेकिन हमें एक दुविधा है। Church attendance is not being born again. और कलीसिया में निरंतर आना ये नए सिरे से जन्म लेना नहीं है। In England there was a bishop. और इंग्लैंड में एक बिशप था। After his retirement, और अपने रिटायरमेंट के बाद he was attending an evangelistic meeting. और वो एक सुसमाचार सभा में शामिल हुआ। In that he was born again. उस सभा में नए सिरे से जन्म लिया। You can continue to live as a Christian. आप एक लगातार एक मसीह बन के जी सकते हो। You can have any idea. आपके पास कोई भी विचार हो सकते हैं। John 8, यूहन्ना 8 31 to 47. 31 से 47 तक। Take it as a homework. इसे एक आप गृह कार्य के रूप में ले। Take that verse and go and study them. और इस वचन को आप ले और इसे जाके अध्ययन करें। Chapter 8, verse 31 to 47. यूहन्ना 8 का 31 से 47। I will tell you what to study. मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीखना है। It is a conversation between Jewish people who believed in Jesus Christ. ये एक वार्तालाप है यहूदी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। Between him, Jesus Christ, and these people, this conversation. और यीशु मसीह और यहूदी लोगों के बीच की ये वार्तालाप है।
What is the conversation? वार्तालाप क्या है? They are all telling, these Jewish people are telling, we are Abraham's children, so we are God's children. और यहूदी लोग कह रहे हैं अब्राहम की संतान है तो हम परमेश्वर की संतान हैं। The Lord tells, प्रभु कहता है, I know that you are descendants of Abraham, मुझे मालूम है कि आप अब्राहम की संतति हो, but you are not God's children. लेकिन आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। He gives 7 reasons. और यहाँ पर वो 7 कारणों को बताता है प्रभु। Find out the 7 reasons. और उन 7 कारणों को आप ढूंढें जो इसमें बताया गया है। Homework. ये आपका गृह कार्य। Find out the 7 reasons. उन 7 कारणों को आप and apply those reasons to your life. और उन कारणों को आपके जीवन में आपको लागू करना है। And find out the answers. और आपको उसका उत्तर भी ढूंढना है। Okay? Is the reason applicable to you? क्या कारण आपके लिए लागू होता है? So, and the conclusion, will it be applicable? जो उपसंहार है क्या वो भी आपके लिए लागू होता है? What is his conclusion? और उसका निष्कर्ष क्या है? He says, you may think you are children of God, but you are not children of God. आप शायद सोचोगे कि आप परमेश्वर की संतान हो, लेकिन आप परमेश्वर की संतान नहीं हो। Sometimes some shocking news is. और कभी-कभी जो है झटका देने वाला समाचार आ जाता है। Most of the problems in Christian life come. और ज़्यादातर जो समस्या मसीह जीवन में जो आते हैं, Because the foundation is not laid. क्योंकि जो नींव है उसे डाला नहीं गया है। Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. अगर आप नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। A girl came and told the pastor, एक लड़की आई और पासवान से कहा, Pastor ji, I want to get married. पासवान जी मुझे शादी करनी है, Will you look for a boy? क्या आप एक लड़के को देखोगे मेरे लिए? Pastor asked, what kind of boy you want? पासवान ने पूछा किस प्रकार का लड़का चाहिए तुम्हें? Believer. विश्वासी। Then the pastor, what kind of believer? और पासवान ने पूछा कैसा विश्वासी चाहिए तुम्हें? What pastor, what believer? क्या पासवान आप भी विश्वासी? Believer. विश्वासी। Pastor said, I know of a boy. पासवान ने कहा मैं एक लड़के को जानता हूँ, Gem of a character. एकदम जो है ना एकदम हीरा है, वो हीरा अपने स्वभाव में। हिंदी में बराबर बनता है। More than English, it is good in Hindi. Okay. But he lives by faith. He has no job. लेकिन वो विश्वास से जीता है, उसको नौकरी नहीं है। Not that kind of believer, pastor. पासवान ऐसा विश्वासी नहीं चाहिए मेरे को। He must have a good job and good salary. उसका एक अच्छा नौकरी होना चाहिए, अच्छा तनख्वाह होना चाहिए। Believers walk by faith or walk by sight. विश्वासी लोग विश्वास से चलते हैं या दृष्टि से चलते हैं? बोलिए, by sight or by faith? दृष्टि से या विश्वास से? Those who walk by sight, who are they? जो दृष्टि से चलते हैं वो कौन है? Unbelievers? अविश्वासी। Now we are all believers. क्या हम विश्वासी हैं? No, we have our own definition of believers. और हमारा खुद ही जो कुछ वाक्यांशों को हम बना देते हैं, विश्वासी कौन है? Who goes to church regularly. जो कलीसिया निरंतर जाता है। Has big Bibles. क्या पास बड़ा बाइबल होता है? At least 2 Bibles. कम से कम 2 बाइबल तो उसके पास होते ही हैं। If church service begins at 9 o'clock, you must be there by 8. अगर कलीसिया की जो सभा है अगर वो 9 बजे शुरू होती है तो वो 8 बजे ही पहुंच जाता है। Help arranging everything. और मदद करता है सब कुछ जो सही तरह से लगाने में। And in one corner he must be kneeling and praying. और एक कोने में वो घुटने टिकाकर प्रार्थना भी करता है। If you are a woman, you must put the veil and sit. और अगर आप एक स्त्री हैं तो आपको ओढ़नी डालनी है और In between, if people come, you must lift and then cover it nicely. और अब जब अगर बीच में लोग आए तो आप उसको अब निकाला तो दोबारा उसको आप ओढ़नी को डाल रहे हो। Tight properly. Tithing properly. और जो है Tithing. होगी दशांश देना टाइट। And go with the pastor for ministry.
Go with the pastor for evangelistic work. और पासवान के साथ सुसमाचार बांटने के लिए जाओ. Now the pastor gives a certificate. और पासवान जो है अभी एक सर्टिफिकेट दे देता है. अच्छा believer. It's a good believer. One of my friends got married to a believer और मेरा एक दोस्त है, उसने विश्वासी के साथ शादी in की America. अमेरिका में. When she went there, जब वो उधर गया, there is another wife. उधर एक और बीबी है उसको. She is also a believer. वो भी विश्वासी है. Buy one get one free. So now we have new words. तो हमें जो है अभी नए शब्द मिल गए हैं. Born again, baptized, spirit-filled believer. और नए सिरे से जन्मा और बपतिस्मा लिया और आत्मा से भरा हुआ Have you विश्वासी. seen matrimonial advertisements in Kerala? क्या आपने शादी के इश्तिहारों को देखा है अखबारों में केरला में? You have not put it. आपने अभी तक डाला नहीं है. There are other qualifications in bracket. और जो बाकी की जो योग्यताएं हैं ना, उससे ब्रैकेट में डाला जाता है. Fair in color. और रंग जो है वो गोरा है. Height minimum. और जो लंबाई है वो न्यूनतम है. These are the more important things. And job. ये सब चीजें जरूरी है नौकरी से भी ज्यादा. So we have a lot of confusion about this born again. और हमारे अंदर जो है बहुत ही दुविधा है इस नए सिरे से जन्म लेने के बारे में. Please sit with the word of God. Ask the Holy Spirit to show you. और कृपया करके वचन के साथ बैठे और बोले कि पवित्र आत्मा आपको ये बात दिखाए. God is not partial to anyone. परमेश्वर किसी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं करता. If you're not sure, tell him. अगर आप पक्के नहीं हो तो उसे आप कहें उसे. If you're sure, allow the Spirit of God to affirm you. अगर आप एक सही में आपको ये लगता है कि ये बात पक्की है तो पवित्र आत्मा को काम करने दें. But don't live under assumption. लेकिन आप अपनी धारणाओं में जीवन व्यतीत ना करें. Make it clear. उसे स्पष्ट करें. Once a friend was introduced to me. और एक बार एक दोस्त को मुझसे जो है Friend introduced someone to me. मेरे दोस्त ने दूसरे किसी व्यक्ति का मुझसे मिलाया. After some conversation, कुछ समय बातचीत होने के बाद I asked him, "Are you born again?" मैंने उससे पूछा क्या आपने दोबारा जन्म लिया है? I met him 7 years later. मैं उससे फिर 7 साल बाद मिला. He was attending an LRS. और वो LRS में शामिल हुआ. When we were studying this, और जब हम इसका अध्ययन कर रहे थे, Uncle, do you know? You asked this question that 7 years back. अंकल क्या आपको याद है 7 साल पहले आपने मुझसे ये सवाल पूछा था? I did not talk to you after that. उसके बाद मैंने आपसे बात नहीं किया था. I thought, how dare you ask me? और Are you born again? मैंने ये सोचा कि आपको हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की कि क्या मैंने दोबारा जन्म लिया है. But now I know that I was not born again. लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि मुझे मालूम है कि मैंने दोबारा जन्म नहीं लिया है. After some days, नहीं लिया था. After some days, something marvelous happened in his life. और कुछ दिनों के बाद कुछ जो है अद्भुत कार्य जो हो गया. He became an entirely different person. और वो एक जो है पूर्ण रीति से एक दूसरा व्यक्ति बन गया. Joyful. आनंदित. Ask God. परमेश्वर से पूछें. Submit to God. परमेश्वर के सामने समर्पित करें. Tomorrow we will study कल हम अध्ययन करेंगे how this new birth happens through the word of God and spirit of God. और ये जो नया जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा कैसे होता है देखेंगे. That may be enough now. और ये अभी के लिए काफ़ी है. Time for writing a summary. और आपका सारांश लिखने का समय है. ये आज के दिन का पूरा जो आपने सीखा है उसका सारांश लिखना है. So when you write, you may remember only the last part. जब आप लिखोगे तो केवल अभी जो आपने सीखा है उसे ही याद रख पाओगे.